Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. And don't forget to prefix 011 before these telephone numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज सोमवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं सम्मिलित और पूछ सकते हैं हमसे अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331 4444, 2342 1050 या फिर 2331 0464। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं निशित कुमार। The headlines: Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a leading force in global space aviation convergence, addresses International Air Transport Association's 81st annual general meeting in New Delhi today. Benchmark domestic equity indices end with marginal losses. Sensex drops over 70 points. Nifty closes below 24,750. And global crude oil prices surge over 3%. Brent crude trades at $65.12 per barrel. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ आईटा के नई दिल्ली में आयोजित 81वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। कहा, ग्लोबल स्पेस एविएशन कन्वर्जेंस क्षेत्र में भारत प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। घरेलू शेयर बाजार में आज हुई मामूली गिरावट। सेंसेक्स 70 अंक से अधिक फिसलकर हुआ बंद। निफ्टी 24,750 के स्तर से नीचे आया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत 3% से अधिक बढ़ी। ब्रेंट क्रूड के दाम $65.12 प्रति बैरल के आसपास पहुंचे। We begin with the leading story today. Prime Minister Narendra Modi has said that India's aviation sector is a key player in the global air transport industry, and today it is filled with self-confidence. Addressing the International Air Transport Association IATA's 81st annual general meeting at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister said that India is emerging as a leading force in global space aviation convergence. Mr. Modi said that the success of the UDAN scheme is a golden chapter in Indian civil aviation, and now India has become the world's third largest domestic aviation market. He added that India is not just a huge market in the global aviation ecosystem, but it is also the symbol of policy leadership, innovation and inclusive development. Shishirji, the third largest aviation market in the world, this is one, and India actually hosting this after 42 years. The last it was held was in the year 1983. How big is this for you? If you consider the number of aircrafts ordered by Indian Airlines, whether we talk about Air India, whether we talk about Indigo or any other airline, if you take that number, that can give you an idea that how big this market is or what kind of potential it holds. Considering the population of our country, which is around 144 crore, if the annual number of air traveler is say 3 crore, 3.5 crore maximum, that means a large number of population is still to travel. And that is why
all the companies across the globe, they are coming to India just to gauge the market. We also need to understand that the aviation FDI is much more liberal than what we had. So the companies are also finding it a market where they can set up the market. And please remember, we have very limited number of airlines. So the potential is very high. The number of airports which are at present is almost 150, which are operational one. So considering all those things, airline companies and the aviation industry is considering India as one of the very potentially very good potential market, and that is why this meeting is held after a gap of 42 years. And this meeting, please remember, this is a very, very critical meeting where all the airline chiefs are there, where all the aviation industry people are there. It's a kind of marketplace for all the players, and that signifies the importance of Indian aviation market. श्रोताओं, विमानन क्षेत्र के दुनिया भर के दिग्गजों का जमावड़ा भारत में चल रहा है। नई दिल्ली में 3 दिवसीय बैठक चल रही है और इस बैठक के बारे में हमने विशेष बातचीत आज आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली जी के साथ की है। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं हमारे नियमित सुर्खियों में कार्यक्रम में और स्पॉटलाइट का कार्यक्रम में अंग्रेजी में। आइए अब आमंत्रित करना शुरू करें अपने श्रोताओं को, और हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम दिल्ली से आमंत्रित करना चाहेंगे विजेंद्र जी को। विजेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा जी, स्वागत आपका। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो पावर कंपनी होती है, जैसे लाइक SJVN और लाइक दैट रिलायंस पावर, तो इसमें क्या है कि ये जो रिलायंस पावर है ये बैटरी स्टोरेज बिजली को बैटरी स्टोरेज करती है और वो प्रोडक्शन करती है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? जो बैटरी स्टोरेज करती है और एक ऐसे प्रोडक्शन, तो इनमें व्हाट इज द डिफरेंस सर? देखिए विजेंद्र जी, जब हम बिजली कंपनियों की बात करते हैं ना, तो इसमें 2-3 तरह की कंपनीज होती हैं। एक जो कि बिजली का उत्पादन करती हैं पारंपरिक स्रोत, जिसको कोयले से हम लोग कहते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जो नवीन ऊर्जा का उत्पादन करती हैं, चाहे वो पानी के ज़रिए हो या फिर आप हवा के ज़रिए हो, इनके ज़रिए या सौर ऊर्जा के ज़रिए हो। तो ये कंपनियां जो कहलाती हैं वो आपकी उत्पादन कंपनियां कहलाती हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो कि पारंपरिक स्रोत जैसे कोयले से भी बिजली का उत्पादन करती हैं, और उसके अलावा वो जैसे कहा जाए सौर ऊर्जा के ज़रिए भी जो है वो बिजली का उत्पादन कर रही हैं। दूसरी तरफ कुछ कंपनियां होती हैं जिनका काम होता है कि जो बिजली उत्पादन हुआ है उनको घरों तक पहुंचाए, जिनको हम लोग ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूटर्स। एक आपका ट्रांसमिशन का और एक आपका डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ट्रांसमिशन के लिए अलग कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग कंपनी है। तो ये 3-4 तरह की कंपनियां जो होती हैं वो इस उत्पादन कार्य में लगी होती हैं। जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बिजली बैटरी के उत्पादन का, वो ईवी एसेसरीज यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बनाती कंपनियां हैं या उनसे जुड़ी हुई जो अनुषंगी इकाइयां या संबंधित कंपनियां होती हैं जो बैटरी का निर्माण करती हैं, वो बिजली क्षेत्र की कंपनियां नहीं कहलाती हैं। उनका एक अलग ही होता है, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की कैटेगरी में डालते हैं। हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं। आग्रह कि कुछ पल आप बने रहें। पहले हम आपको शेयर बाजार लिए चलते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली गिरावट हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स बिना किसी खास उतार चढ़ाव के, हालांकि 77 अंक की मामूली गिरावट के साथ 81,374 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 34 अंक यानी 0.14% नुकसान के साथ 24,717 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा है। एक और बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.6% ऊपर आकर बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.3% की वृद्धि हुई। The benchmark domestic equity indices today ended with marginal losses amid weak cues from the Asian markets. The 30-share index at the Bombay Stock Exchange Sensex dropped 77 points to close nearly flat at 81,374. The National Stock Exchange Nifty 50 slipped 34 points or 0.14% to settle at 24,717. Conversely, the broader market indices at the Bombay Stock Exchange outperformed the benchmark indices. The mid-cap index advanced almost 0.6% and the small-cap index increased
over 0.3%. In the Sensex index, 17 out of 30 companies ended down. The top laggards were Tech Mahindra, which slid almost 1.5%, Tata Steel lost 1.2%, and Tata Motors slipped over 1.1%. Among the top gainers, Adani Ports surged 2.5%, Mahindra and Mahindra added almost 1.6%, and Power Grid advanced over 1%. In the sectoral indices of the Bombay Stock Exchange, 12 out of 21 edged up, while one remained unchanged. Among the top gainers, Realty jumped over 2.3%, Services climbed 1.2%, and FMCG added over 0.6%. In the top laggards, Focused IT shed 0.7%, Metal as well as IT both dropped over 0.5% each, and Tech declined more than 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,128 companies advanced, shares of 1,992 companies declined, while shares of 167 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 68 companies hit their 52-week high, while 38 companies hit their 52-week low. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। उसके बाद हमारे योगेश शर्मा जी दिल्ली से हैं, आपको हम लाइन पर लेंगे, चर्चा करेंगे आपके साथ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 20 पैसे मजबूत हुआ है, 85 रुपये और 30 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 98.75 पर चल रहा था। और बहुत धैर्य के साथ हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली से योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। जी नमस्कार आप सभी को। नमस्ते। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या मार्केट में कोरोना का फियर दिखने लगा है? क्या आपको लगता है अभी कोरोना से थोड़ा मार्केट सावधान है? दूसरा सवाल है, क्या आपको कभी ऐसा वाकया जानने में आया है कि लिक्विड फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पैसा निवेशकों का फंसा हो या डूबा हो कभी? पहली बात, जो कोविड का असर अभी बाजार पे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, और उसकी वजह यह है कि तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि एक सामान्य फ्लू के तौर पे अब हो चुका है। हालांकि ये बहुत तेजी से फैलता है, इसको लेकर के थोड़ा डर तो बना रहता है, लेकिन जो आशंकाएं 2020-21 या 2021-22 में हुआ करती थी, अब उस तरह की आशंका नहीं है। तो बाजार में इसका असर नहीं है, बल्कि कई और घटनाएं हैं जो बाजार को प्रभावित कर रही हैं, और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कौन कौन सी घटनाएं हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि लिक्विड फंड में क्या लोगों का कभी पैसा फंसा है, ये तब जाकर के सिचुएशन आती है कि जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ही टाइट हो जाए, बहुत ही विषम परिस्थिति बन जाए। आपको एक बात बताएं कि दुनिया के कई देशों में ये परेशानी अभी हो रही है लिक्विडिटी को लेकर के, और उसका असर ये भी हुआ है कि कई निजी कंपनियां जो हैं वो निवेश के अपने नए जो योजनाएं हैं उनको रोक रही हैं, क्योंकि नकदी को लेकर के एक है परेशानी। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति अभी नहीं है कि किसी लिक्विड फंड में अभी पैसा फंसा हो। कभी एक आध बार ऐसा सिचुएशन आया हो, लेकिन वो बहुत ही कोई गिनती के 1-2 फंड है जिसमें ये परेशानी आई थी। वो उस असेट मैनेजमेंट कंपनी की परेशानी थी, ना कि व्यवस्था का दोष था। शिशिर जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है मार्केट, किस रूप में ले रहे हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि छोटी और मझोली कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया? देखिए, 2 घटनाएं जो कि सप्ताहांत पे हुई हैं जिसने थोड़ा सा परेशान किया है बाजार को। एक, जिस तरीके से यूक्रेन ने रूस पर हमला किया, उसको लेकर के थोड़ी सी एक अनिश्चितता बनी है कि पता नहीं ये और कितना फैलेगा, क्योंकि ये एक पहला मौका हाल के समय में कहें 3 साल हो गए लगभग इस युद्ध को, लेकिन अभी के समय में ये इतने बड़े पैमाने पर रूस में नुकसान पहुंचाने की खबर आई है, उसको लेकर के थोड़ी सी अनिश्चितता है। लेकिन उस अनिश्चितता से अगर आप देखें कि 70 अंकों की गिरावट कोई मायने नहीं रखती है। दूसरी बात जो यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण है कि छोटी और मझोली कंपनियों को लेकर के हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि उसमें अचानक से एक झटके में तेजी आती है और एक झटके में गिरावट भी देखने को मिलती है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में निवेशकों को बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटी और मझोली कंपनियां जो हैं वो आपको हो सकता है कि अचानक आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे दें, लेकिन अर्थशास्त्र में एक परिभाषा कहते हैं कि जितना ज़्यादा जोखिम उतना बड़ा फ़ायदा। तो आप छोटी और मझोली कंपनियों की तरफ अगर जा रहे हैं तो आप अपने जोखिम का आकलन ज़रूर कर लें। हमेशा से हमारी राय ये रही है कि अगर आपने निवेश ही करना है तो बड़ी चुनिंदा कंपनियों में करें, वो बेहतर है। भले ही आप छोटे छोटे किस्तों में आप खरीदें, आप 1 शेयर खरीदें, 2 शेयर खरीदें, बजाय इस बात के कि ऐसे जगह लगाए जहां पर मूल पे भी बट्टा लगने का की आशंका हो। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। नजर डालते हैं वैश्विक बाजारों पर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां कुल मिलाकर आज बिकवाली दिखी है।
गौरतलब है कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे स्टील आयात पर शुल्क को 25% से बढ़ाकर 50% कर देंगे और ये शुल्क बुधवार से प्रभावी होने वाला है। इसके मद्देनजर एशियाई बाजार में आज निवेशकों ने बिकवाली की। बिकवाली के दबाव में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.3% नीचे आ गया। हांगकांग का हैंगसेंग 0.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.1% घाटे के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया चलें तो वहां बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास कोस्पी सूचकांक बंद होने की खबर है। इस बीच अवकाश के कारण चीन के बाजारों में कोई कारोबार नहीं हुआ। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो ताजा समाचार मिलने तक प्रमुख बाजारों में मिला जुला रुख दिख रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.4% की गिरावट थी। जर्मनी का डेक्स भी थोड़ा नरमी में था, इसमें 0.2% की कमी दिख रही थी और लंदन का FTSE 100 अपने पूर्व स्तर के आसपास चल रहा था। श्रोताओं, हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आज हमारा फोन इन प्रोग्राम है और फोन इन कार्यक्रम में आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं और बातचीत के लिए आपको डायल करना होगा 2331-4444, 2342-1050 या फिर 2331-0464। और आइए खबरों का सिलसिला थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। भारत और पैराग्वे ने स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जैव ईंधन जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों को और मजबूत करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के दौरान ये निर्णय लिया गया। दोनों देशों ने साइबर अपराध, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता भी जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के पास डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा, रेलवे, अंतरिक्ष सहित अन्य क्षेत्रों में कई संभावित अवसर हैं। उन्होंने कहा कि पैराग्वे दक्षिण अमेरिका में एक मूल्यवान भागीदार है और दोनों देश साझा मूल्यों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने की भी अपार संभावनाएं हैं। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने राष्ट्रपति पालासियोस से मुलाकात की और कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए उनकी सकारात्मक भावनाओं और मार्गदर्शन की सराहना की। नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम दिल्ली, IK सुमन। वेलकम टू द शो। सुमन जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? स्टार्टिंग में कौन से फंड में हमें पैसा स्टार्ट करते समय कौन से फंड से पैसा लगाना चाहिए? डेट फंड में, लिक्विड फंड में, इक्विटी फंड में, फार्मा फंड में, कहाँ से शुरू करना चाहिए म्यूचुअल फंड में? सुमन जी, वैसे तो मार्केट मंत्रा का एक विशेष कार्यक्रम रविवार को होता है म्यूचुअल फंड पे, तो आपके लिए वहाँ पे और विस्तार से जवाब मिल सकता है। लेकिन मेरी अपनी राय ये रही है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में नया निवेश शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए इक्विटी फंड बेहतर है, और उसमें भी अगर आप SIP के ज़रिए आप जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। एक मुश्त रकम ना डालें, और ये भी आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक साथ 2 या 3 SIP में आप पैसा लगा सकते हैं। कोई विशेष स्कीम जिसको हम लोग इक्विटी आधारित कहते हैं या बैलेंस कहते हैं, उसके बारे में अगर आपने सवाल है तो आप रविवार को पूछ सकते हैं, तो आपको एक विशेष स्कीम की भी आपको जानकारी जो है वो दी जा सकती है। इस बीच दिल्ली से हमारे साथ आज जुड़ा है प्रीतम। प्रीतम जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी प्रीतम, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्ते। सर, मैं ये पता करना चाह रहा था कि अब जैसे कि ADB भारत में 86,000 करोड़ का निवेश करने के लिए है, तो इससे क्या मार्केट में कुछ बूम आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में है शायद। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है उनके प्रेसिडेंट आए हुए थे, कांडा साहब आए हुए थे, और उन्होंने बात कही है कि $10 बिलियन के अर्बन प्लानिंग में वो पैसा देंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि ये जो समझौते होते हैं, ये जो बातचीत होती है, बहुत ही लंबे समय के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आज आपने कहा और अगले 6 महीने में सारा पैसा आ गया। ये एक लंबी समय की परियोजना होती है, और इसमें उम्मीद ये भी की जाती है कि अगर ADB की तरफ से ₹1 आ रहे हैं, ₹2 आ रहे हैं मान लीजिए, तो आप $1 या ₹2 भारत सरकार की ओर से भी आएंगे या फिर निजी निवेशक की तरफ से भी लगेंगे। तो एक लंबी चीज़ है। इसका असर बुनियादी क्षेत्र पर उस तरीके से पड़ने का नहीं है जिस तरीके से बाजार में जब जब हमारे नवेशक आते हैं, विदेशी निवेशक आते हैं, उनका असर जो देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉलर इज गौरव फ्रॉम गाजियाबाद। गौरव, वेलकम टू द शो। नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। नमस्कार सर, ये
अमेरिका की डेट सर्विसिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? क्या ये बड़ा प्रकाल रूप बन सकती है और हमारे देश पे, हमारी मार्केट पे, हमारी स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टर्स का इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? या वो मैनेज कर लेंगे और ये जस्ट जो लोगों ने, कुछ लोगों ने हवा फैलाई कि ये बहुत दुष्परिणाम 2008 की तरह के हो सकते हैं, बड़ा बैंक का फॉल आउट हो सकता है, ऐसा कुछ आपके विचार से क्या प्रभाव हमारे मार्केट पे होगा? थैंक यू। गौरव जी, देखिए 2008 वाली परिस्थितियां अलग थी। आप याद करिए कि 2008 का जो संकट था, जिसको हम लोग सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं, अगर मैं ठेठ हिंदी में कहूं तो घटिया कर्ज, यानी कि एक ऐसा कर्ज जिसके पीछे जो संपत्ति रखी गई थी उसकी उतनी कीमत नहीं थी जो कर्ज ना चुकाने की स्थिति में उसको बेच करके हासिल किया जा सके, जिसकी वजह से जो बड़े बैंक थे वो डूब गए थे। अभी का जो परेशानी अमेरिका की है कि अमेरिका का जो अमेरिकी सरकार का कर्ज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये वहाँ के लिए एक बड़ी समस्या है। इसीलिए अब वहाँ के बजट पर नज़र है कि वो किस तरीके के उपाय करते, किस तरह के कदम उठाते हैं। निश्चित तौर पर यह वैश्विक बाजार को प्रभावित कर सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और भारत भी वैश्विक बाजार का हिस्सा है। तो कहते ना कि अमेरिका में अगर छींक आ जाए तो बाकी देशों में बुखार लगने की आशंका होती है। तो वहाँ अगर परेशानी आएगी तो हम उस परेशानी का कुछ असर तो हम ज़रूर देखेंगे। कितना असर होगा, सरकार क्या उपाय करती है, वो हमें देखना। और ये भी याद रखिएगा कि अभी एक रेटिंग एजेंसी ने अमेरिका की जो सोवरेन रेटिंग है वो बदलाव कर दिया, नीचे कर दिया है। तो ये सारी परेशानी है, उसका असर पड़ेगा, कितना पड़ेगा अभी उसके बारे में हम बहुत बताने की स्थिति में नहीं हैं। ये अमेरिका से लौटे फरीदाबाद से हमारे फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं राकेश जी, आपका स्वागत कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। मैं नमस्ते। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, जैसे कि पिछले समय सोना था 60,000, हमने सोचा चलो और घट जाएगा तो फिर लेंगे, फिर हो गया 65, फिर 70, इस तरह कब घटेगा हम इंतजार करते रह जाते हैं। 96,000 हो गया। तो इसका कैसे रोल होता है कि ये घटने का कभी नाम लेता है, अभी तो बढ़ने का ही नाम लेता है? इसके लिए क्या कारण है? इसके कुछ हम कारण समझना चाहेंगे, ये क्या कारण है? बहुत से सभी श्रोता इस बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। राकेश जी, देखिए क्या होता है कि सोना एक ऐसा चीज है जिसकी वैश्विक स्तर पर मांग बहुत ज्यादा और आपूर्ति बहुत ही कम है, तो इसलिए उसके दाम में आप बढ़ोतरी देखते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि ये बढ़ोतरी ऐसा नहीं होता है कि अचानक 10% बढ़ गया। 10% या 5% बढ़ने में कुछ समय लगता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, इतने समय में वो धीरे धीरे बढ़ता है। अब रहा सवाल कि आप खरीदारी कब करें। हमेशा से इस बात को ध्यान रखिए कि आप निवेश करना चाहते हैं या फिर अगर मान लीजिए पारिवारिक कोई आयोजन है उसके लिए कुछ आप खरीदना चाहते हैं। अगर आप गहना खरीदें तो उसे आप निवेश ना कहें। अगर आप सोने का बिस्किट खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आप उसको निवेश कर सकते हैं। और वो भी ध्यान रखिएगा कि आप एक जो रिकॉग्नाइज्ड बैंक हो उनसे आप खरीदें या हॉलमार्क वाले हों वही खरीदें। दूसरी बात कि अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो गोल्ड ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, जिसको हम लोग पेपर गोल्ड भी कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छी स्थिति होती है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है, तो आप अपने जो निवेश हैं उसमें कमी बढ़ोतरी जो है वो कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि एक टाइम होराइजन लेकर के चलिए और निवेश करिए। निवेश करने के ऊपर ध्यान दीजिएगा। गहने खरीदने की बात अगर आप करेंगे तो वो उसके लिए यहाँ पर मेरे पास कोई सलाह नहीं, क्योंकि वो उस समय में कीमत कोई मायने नहीं रखती है गहना खरीदने आप जब जाते हैं तो। नेक्स्ट कॉलर इज रामकृष्ण राजू फ्रॉम चेन्नई। कृष्णा, गुड इवनिंग कृष्णा। Good evening, market manager. Sir, I am 73 years old, blind. Okay, sir. I got a small. I request small suggestion from you. I have deposited an amount of 63,000 rupees in Nationalized Bank for 3 years. So 2 years completed. 3rd year, I want some money. I asked them. They have cancelled my deposit by taking 2,500, 2,200 rupees. Is there from my personal fixed deposit amount? They said we have paid interest. Is there any rule that before paying the sum of money, will any bank pay the interest? No. That's what my question. I don't think. Kindly help me. No, once you take the money, then suppose that if I understand your question correctly, that when you are taking a loan or when you are taking some advance from the bank, you have to pay the interest only when the contractual obligations ask you to do so. It is not something that they will take the interest in advance. I believe that there may be some confusion or there may be some different kind of advances which you have taken
there the contractual conditions would be different. But what I understand from the banking point of view, that when you're taking a loan or an advance, interest will be repaid only after a certain period, not immediately. चेन्नई से हम चले हैदराबाद, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सौरभ। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा जी, स्वागत है। थैंक यू। I just wanted to advise on this home loan versus shares. I had a portfolio about 60 lakh rupees. Now it is down by around 10%. However, in next 3 months, for this purpose only I had made this portfolio for building of home. But now I have an option of taking a home loan of around 50 lakhs or go for 10% to 5% down in next 3 months and pay from my portfolio at loss. So what should I do? Should I take the loan for 10 to 15 years or should I take the loss and pay from this portfolio? Thank you. Mr. Saurabh, if your principal is intact when you have invested in the stock market, you can go for some sort of profit booking. I understand that you made an investment to build a house, and if your principal is intact and if you are earning some sort of interest, some sort of return on that, please go and book the profit and pay for the home thing. Buying a house on the basis of loan, if you have some money in your hand, is not a good idea. हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर अभी भी हैं, जिसमें बिहार से टिंकू राय जी हैं। टिंकू जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपने संपर्क किया, लेकिन जो उपलब्ध समय है उसमें हम आपको आज सम्मिलित नहीं कर सकेंगे। सभी आप श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक यात्री कार के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना के दिशा निर्देश की अधिसूचना जारी की है। भारी उद्योग मंत्री एस.टी. कुमार स्वामी ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत कम आयात कर की पेशकश कर रहा है। बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए कम से कम $35,000 की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15% का आयात कर लागू है। उन्होंने कहा कि ये लाभ तभी उपलब्ध होंगे जब कंपनियां देश में इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश और विनिर्माण पर सहमत होती हैं। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। एक अच्छी खबर माने सोने को लेकर के नहीं, ये जो ईवी को लेकर कुमार स्वामी जी, बिल्कुल, ये देखिए, ईवी जो है कल का हमारा वाहन है और उसमें किसी भी तरीके की प्रोत्साहन हमारे लिए एक नया मौका दे रही है। और याद रखिए कि जीएसटी की दर इस पे कम है अगर आप पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदते हैं तो जी। And moving on to crude now. Crude oil prices rose over 3% today after producer group OPEC Plus kept output increases in July at the same level as the previous 2 months. Brent crude was trading over 3.7% up at $65.12 per barrel. WTI crude was also trading over 4.1% up at $63.32 per barrel when reports last came in. कार्यक्रम के अंतिम चरण में चलें सर्राफा बाजार, जिसमें निवेश की बड़ी अच्छी योजनाएं हमारे विशेषज्ञ ने आप श्रोताओं को दी हैं। आज हम सोने चांदी के भाव आपको बता रहे हैं, जिसमें चमक आज फिर से तेज होने की खबर है। समाचार तैयार किए जाने तक भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 1.74% बढ़त के साथ 97,610 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी 1.6% लाभ के साथ 98,860 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। यदि हम मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में नजर डालें तो वहां ताजा समाचार मिलने तक जून आपूर्ति वाले सोने का मूल्य 1.96% बढ़त के साथ 96,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं जुलाई आपूर्ति वाली चांदी 1.73% बढ़त के साथ 98,690 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शिशिर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Shishir ji. And before we close, a reminder of the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a leading force in global space aviation convergence, addresses International Air Transport Association's 81st annual general meeting in New Delhi today. Benchmark domestic equity indices end with marginal losses. Sensex drops over 70 points. Nifty closes below 24,750 and global crude oil prices surge over 3%.
Brent crude trades at $65.12 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye. Market Mantra.